Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers Adda. So myself Nishtha, I'll be teaching chemistry on this platform. So please do subscribe this channel for more educational videos. You can also send me any query related to the topic in the comment box. So today we are going to start with the topic solutions of class plus 2. So what do you mean by solutions? So first of all we will discuss about the definition of solutions. So solution is a homogeneous mixture of two or more components. Simply दो या दो से ज्यादा components जब combine होके homogeneous mixture बनाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं solution. अब homogeneous mixture का क्या मतलब है? Homogeneous mixture means that mixture which is homogeneous means it is in one phase. जैसे हम नमक को water में dissolve करते हैं, then it dissolves completely and it shows only single phase, one phase, that is a homogeneous mixture. So solution, first of all we will discuss about the definition of solution. So solution is a homogeneous mixture of two or more components. So what are the characteristics of solutions? Characteristics means उसकी properties क्या है? अब देखो जो solution है, solution is a homogeneous mixture means वो properly उसमें dissolve हो चुके हैं दोनों चीजें, या दो है या दो से ज्यादा है, that depends. अब जब उसमें properly dissolve होंगे तो first characteristic, उसकी first property हम क्या करेंगे? That the solution cannot be filtered. अगर आप उसको फिल्टर करोगे तो उसका जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं हम उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते. सिमिलरली फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज इट डू नॉट स्कैटर द लाइट बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल. द सोल्यूशन पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, सो दे डू नॉट स्कैटर द लाइट. एंड सो थर्ड इज components. How many components are there in a solution? That depends कि दो components से हमने solution बनाया, तीन से बनाया, चार से बनाया, different solutions होते हैं. So after this we are going to discuss about the binary solutions. Binary, bi means two. So the solutions in which there are two components are called binary solutions. Two components means, for example, A component हमारा है salt, नमक, second component हमारा water. तो अगर हम इन दोनों को mix करते हैं, this type of solution is called a binary solution. So next, अब binary solution में मैंने बोला two components होते हैं. अब वो two components कौन से components हैं? दो components इसमें होते हैं, एक होता है solute and the second one is solvent. So what is solute and what is solvent? Solute is that component that is present in lesser amount. For example, हमने water में salt dissolve किया तो salt हमने 1 teaspoon लिया. Let us say 1 teaspoon means water की quantity salts की quantity से बहुत ज्यादा है. So means that component which is lesser in the quantity, that is called solute. And the other component which is more in quantity, for example in water, that is present in that solution, for example water, that is a solvent. So जो ज्यादा quantity में होगा solution में उसको हम बोलेंगे solvent, और जो कम quantity में होगा उसको हम क्या बोलेंगे? solute. So binary solutions are made up of two components. First is solute and second is solvent. Now solutions की बड़ी सारी types हैं, हम turn by turn उन types के बारे में discuss करेंगे. Now we are going to start with the first type of solution is aqueous solution. अब देखो aqua किसको बोला जाता है? water. So aqueous solution कौन से solutions होते हैं जो water की presence में बनाए जाते हैं? जैसे अभी हमने एग्जाम्पल ली salt dissolved in water और sugar dissolved in water. This is a type of aqueous solution because water is present in it. Similarly, there are non-aqueous type of solutions. Non-aqueous means जिसमें water present नहीं है.
कोई और सॉल्वेंट प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई चीज अल्कोहल में डिजोल्व कर रहे हैं, सो अल्कोहल इज नॉट वाटर, दैट इज कॉल्ड नॉन एक्वस सोल्यूशन। अल्कोहल में डिजोल्व कर लो, ईथर में डिजोल्व कर लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजोल्व कर लो, बेंजीन में डिजोल्व कर लो, so these all are non-aqueous solvents. So इनसे जो सोल्यूशन बनेंगे हम उनको क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। ना अब देखो सोल्यूशंस हमने डिस्कस कर लिया। अब बेसिकली मैटर जो है, मैटर की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। दीज 3 आर द बेसिक टाइप्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 2 स्टेट्स और हैं बट जनरली ये 3 स्टेट्स ही हम डिस्कस करते हैं। सो देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशन। सो सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होंगे, जिसमें हमारा जो सॉल्वेंट है इज सॉलिड, जो हमारा सॉल्वेंट है वो सॉलिड है। मीन्स अगर हम कोई ज्यादा क्वांटिटी में सॉलिड ले रहे हैं तो हम उस सोल्यूशन को बोलेंगे सॉलिड सोल्यूशन। अब सॉलिड सोल्यूशन, अब जरूरी नहीं है कि सॉलिड में सॉलिड ही डिजोल्व करें, हम सॉलिड में गैस भी डिजोल्व कर सकते हैं, हम सॉलिड में लिक्विड भी डिजोल्व कर सकते हैं और सॉलिड में सॉलिड भी डिजोल्व कर सकते हैं। सो सॉलिड सोल्यूशन इज फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट सॉलिड इन सॉलिड, सेकेंड गैस इन सॉलिड, थर्ड लिक्विड इन सॉलिड। तो ये 3 तरह के सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं। एग्जाम्पल इसकी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई मेटल है, निकल है, आयरन है, कॉपर है, इनमें कोई गैस, इनमें क्या होते हैं छोटे छोटे, सपोज दिस इज आवर मेटल बॉक्स, इसमें छोटे छोटे पोर्स में कई बार गैसेस जो होती हैं वो सेट हो जाती है, बैठ जाती है। तो ये क्या है, सॉलिड। और सॉलिड क्या है, हमारा सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में है और ये जो सॉल्यूट है दैट इज लेसर इन अमाउंट। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सोल्यूशन। नाउ सेकेंड इज लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होगा जिसमें हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ली सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। अब वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में है, दैट इज वाई दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। अब ये भी 3 तरह के होंगे, लिक्विड इन लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल इन वाटर, सेकेंड सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्ट इन वाटर एग्जाम्पल, थर्ड गैस इन लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। सो इस तरह के सोल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, लिक्विड सोल्यूशंस। नाउ गैसियस सोल्यूशंस क्या होंगे, जिनमें हमारा जो सॉल्वेंट है दैट इज अ गैस। अब इसमें कोई भी गैसियस मिक्सचर ले सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन दोनों को हमने कंबाइन करवाया, एक मिक्सचर बनाया। दिस इज एग्जांपल ऑफ अ गैसियस सोल्यूशन। इफ इट इज होमोजीनियस देन इट विल बी सोल्यूशन, अदरवाइज इट विल नॉट बी द सोल्यूशन। सो ये 3 तरह के हमारे आ गए, एक्वस, लिक्विड सोल्यूशन, गैसियस सोल्यूशन एंड सॉलिड सोल्यूशंस। ना ये तो हमने डिस्कस कर लिया टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट्स, कि वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है या गैस स्टेट में प्रेजेंट है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब देखो जो सोल्यूशन है, सॉल्युबिलिटी के बेस पे हम कैसे डिफाइन करेंगे, इनको टाइप्स क्या होंगी। 3 तरह की इनकी टाइप्स हैं। फर्स्ट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन, सेकेंड इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड थर्ड इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, दैट सोल्यूशन इन विच no more solute can be dissolved. For example, हम 50 ml वाटर लेते हैं, उसमें 2 स्पून शुगर के डालें, अगर 2 से ज्यादा डालें, 3 डालें, 4 डालें, एक लिमिट ऐसी आएगी जिसके बाद वो शुगर वाटर में डिसॉल्व होनी बंद हो जाएगी। सो सैचुरेटेड सोल्यूशन हम उस टाइम पे बोलेंगे जिस टाइम पे नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन लिक्विड।
that is the saturated solutions. Now unsaturated solutions. Unsaturated means जिसमें हम और solute ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट है, सॉल्ट अगर 1 टीस्पून डाला, 2 डाला, डिजोल्व हो ही गया साथ साथ. जब तक वो डिजोल्व हो ही जाएगा तब तक वो अनसेचुरेटेड रहेगा. बट जब वो लिमिट आ जाएगी, जब उससे फर्दर डिजोल्व नहीं हो रहा, देन इट विल बिकम सैचुरेटेड सोल्यूशन. नाउ एंड द लास्ट टाइप ऑफ द सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. अब ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं? दो सोल्यूशंस जिनमें सैचुरेशन के बाद हमने थोड़ा सा और सोल्यूट डिसॉल्व करवाया. जैसे एट गिवन टेम्परेचर अगर हम कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोल्यूट उसमें डिसॉल्व करवा रहे हैं, अगर सपोज हमने टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज किया, वो थोड़ा और उसमें डिसॉल्व हो गया सैचुरेशन के बाद, दैट इज द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. अगर हम इसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस करें, कुछ चेंजेस करें, तो हम इसमें से जो एक्स्ट्रा सोल्यूट हमने ऐड किया था सैचुरेटेड के अंदर, हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं. सो मीन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कैन बी मेड सैचुरेटेड बाय रिमूविंग दैट एक्स्ट्रा सोल्यूट. जो एक्स्ट्रा हमने उसमें डाला था उसको अगर हम रिमूव कर दें, फिल्टर आउट कर दें, तो उसको सुपर सैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ ये तो थी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. अब हमने नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करना है, आपने +1 में भी डिस्कस किया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस. So what do you mean by concentration of solutions? Concentration of solution is the amount of solute present in the given amount of solution. For example, हम 10 ग्राम solute dissolve कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि क्या है वो, उसकी concentration है. That is the concentration. So concentration of solution क्या है? Amount of solute that is dissolved in given amount of solution. इसको किसमें डिसॉल्व किया? गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन. तो वो जो आएगी वैल्यू, दैट इज द कंसंट्रेशन. अब कंसंट्रेशन को आप नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे सोच सकते हो कि सपोज अगर हमने वाटर में 2 स्पून शुगर डाले, दैट इज लेस कंसंट्रेटेड, उसमें क्वांटिटी ऑफ शुगर लेस है. अगर उसमें 5 स्पून्स डाले हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो गई? इंक्रीज. सो मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि वो कितना हमने उसमें डिसॉल्व किया है. जितना ज्यादा किया है उतनी ही कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियस मेथड्स which are used to find out the concentration of various solutions. So first method that we are going to discuss is mass by mass percentage. मास बाय मास परसेंटेज को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, W/W परसेंटेज. सो ये कैसे निकालनी है हमने? इट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट. कितनी अमाउंट है सॉल्यूट की, मास की रिप्रेजेंटेशन, ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन हमने टोटल कितना ग्राम लिया है, और परसेंटेज है मल्टीप्लाई बाय 100. सो दिस इज द फॉर्मूला दैट इज यूज्ड टू फाइंड आउट मास बाय मास परसेंटेज. तो अब देखो यहाँ पे अगर हम यूनिट देखें तो इसके ये भी ग्राम में होगा, ये भी ग्राम में होगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा. इट इज ओनली आपने उसके आगे परसेंटेज डाल देनी है. अब हम इसके एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल हमें बोला है 10% NaCl is dissolved in 100 gram of solution.
10% का क्या मतलब है? 10 ग्राम। 100 ग्राम में से 10 ग्राम हमें ये दिया हुआ है, तो मतलब हम इसको सीधा बोल सकते हैं कि 10 ग्राम NaCl है। कितने में? 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो मतलब अगर 10 ग्राम सॉल्ट है, 100 ग्राम टोटल था, तो हमारा वाटर कितना हुआ? वाटर हमारा होगा 100 माइनस 10 दैट इज 90 ग्राम्स। तो 90 ग्राम्स वाटर, उसमें 10 ग्राम सॉल्ट लिया, जब कंबाइन किया तो टोटल 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन फॉर्म हो गया। सो दिस इज द मास बाय मास परसेंटेज that is used to find out the concentration of solutions. So this is the first method which we have discussed. Now we will discuss about the second method to find out the concentration of solution, that is volume by volume percentage. So volume by volume percentage को आप V by V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसकी नेम से आपको पता लग रहा है, अगर आपने V by V परसेंटेज निकालनी है तो ये कैसे आएगी? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज है तो हमें 100 साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, इट मीन्स यहाँ पे दोनों के वॉल्यूम हमें दिए होने चाहिए, दोनों के वॉल्यूम। अब देखो, जो सॉलिड चीज होती है वो कभी भी वॉल्यूम में नहीं दी होती, वॉल्यूम में हमेशा लिक्विड दिया होता है। जैसे हम लोग मिल्क लेने जाते हैं तो लीटर्स में होता है, मिलीलीटर्स में होता है, दैट इज द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 10 ml ऑफ एल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml of solution. 10 ml. Volume by volume percentage, we will know that 10 ml of alcohol is dissolved in 100 ml of solution. इसका क्या मतलब है कि 10 ml हमने अल्कोहल डाली, कितने में? 100 ml सोल्यूशन में। 100 ml हमारा सोल्यूशन था, ये क्या है? हमारी अल्कोहल। तो वाटर कितना? अब देखो, दोनों मिलीलीटर्स में है, बिकॉज एल्कोहल इज अ लिक्विड एंड वाटर इज ऑल्सो अ लिक्विड। तो अगर दोनों मिलीलीटर्स में होंगे, सोल्यूट भी और सोल्यूशन भी, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर 1 ग्राम में है और दूसरा वॉल्यूम में है तो फिर हम डिफरेंट मेथड लगाएंगे। अगर दोनों ग्राम्स में है तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे? जो इससे पहले हमने किया था, मास बाय मास परसेंटेज। नाउ इसके बाद थर्ड मेथड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब क्या होगा? थर्ड मेथड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसमें क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। अब देखो, जो हमने लास्ट जो मेथड किए थे, एक में था मास बाय मास, एक में था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो दोनों में यूनिट्स कट हो गए थे, कोई यूनिट नहीं आया था। बट यहाँ पे यूनिट्स कट नहीं होंगे। मास किस में होता है? ग्राम्स में। वॉल्यूम किस में होता है? मिलीलीटर्स में। और ये ऊपर जाएगा तो -1, सो इसका यूनिट क्या आएगा? ग्राम पर मिलीलीटर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ दिस परसेंटेज। नाउ इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल 10 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 100 milliliters of solution. So अब यहाँ पे देखो, ये हमें मिलीलीटर्स में दिया है, ये हमें ग्राम्स में दिया है। जब ऐसा कुछ हो तो हमें कौन सा मेथड लगाना है? मास बाय वॉल्यूम का। मास बाय वॉल्यूम का जब हम मेथड लगाएंगे तो उससे क्या होगा? हमारा ऊपर मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। So this was the third method of finding the concentration of solution. Now, the fourth method of finding the concentration is
पार्ट्स पर मिलियन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है पीपीएम। सो पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन से आपको पता लग रहा है मिलियन कितने होते हैं 10⁶। सो पीपीएम का फॉर्मूला यहीं से हम निकालेंगे, दैट इज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट ओवर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन सोल्यूशन एंड मिलियन के कारण मल्टीप्लाई इट बाय 10⁶। अब देखो ये तो आ गए नंबर ऑफ पार्ट्स और नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। अब इसके यूनिट हम ज्यादातर लिखते हैं पीपीएम या माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ज्यादातर तो हम वैल्यू इसकी पीपीएम में ही लिखेंगे। So this was the third method, that is parts per million, जिसका फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट। कितने पार्ट्स है, सपोज टोटल 100 पार्ट्स है, उसमें 20 पार्ट्स सोल्यूट के हैं, तो यहाँ पे 20 ले लेंगे ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁶। तो उस तरह से हम पीपीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ आवर फोर्थ मेथड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। अब देखो मोल फ्रैक्शन का सबसे पहले आपको सिंबल पता होना चाहिए, दैट इज स्मॉल एक्स। मोल फ्रैक्शन नेम से पता लग रहा है मोल्स की फ्रैक्शन, तो सबसे पहले हमें पता लगना चाहिए मोल्स क्या होते हैं। मोल्स एक फिक्स्ड क्वांटिटी है किसी भी सब्सटेंस की। मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस कैसे निकाल सकते हैं हम, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास। अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूल का मास ले लेंगे, अगर कोई एटम है तो उसके एटॉमिक मास से उसको डिवाइड कर देंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमने निकालने हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम। नंबर ऑफ मोल्स दैट इज गिवन मास, गिवन मास को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मॉलिक्यूलर मास को या एटॉमिक मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स हमने निकालने हैं तो ये हमारा फॉर्मूला है ना। अब हमने करना है मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या है, एक्स। सपोज हमारे कोई सोल्यूशन है, बाइनरी सोल्यूशन, उसमें दो कंपोनेंट्स है, एक ए कंपोनेंट एक बी कंपोनेंट। सो एक्स ए, अगर हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालनी है दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली अगर हमने एक्स बी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे भी देखो मोल फ्रैक्शन किसकी फ्रैक्शन है, नंबर ऑफ मोल्स की। तो ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल्स है, तो इसका भी कोई यूनिट नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे दोनों कंपोनेंट्स के, फिर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करके मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली कि एक सॉल्यूशन था जिसमें दो ही कंपोनेंट्स थे, ए और बी। सपोज एक सॉल्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट्स है, 4 कंपोनेंट्स है, तो हम उसका भी ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सपोज कोई एक्स एन निकालना है हमने, दैट विल बी इक्वल टू एन ऑफ दैट कंपोनेंट ओवर टोटल। टोटल अब कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, अप टू सो ऑन एन तक। सो सारे नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उससे। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। अब एक फॉर्मूला जो बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पे कि अगर हमारे पास एक ही मोल फ्रैक्शन है दूसरे की निकालनी है, उसके लिए बड़ा सिंपल मेथड है, एक्स ए प्लस एक्स बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। अगर हमारे पास एक्स ए यहाँ से हमने निकाल लिया, एक्स बी इसमें निकालने की बजाय हम सीधा 1 में से माइनस करेंगे तो हमारा एक्स बी आ जाएगा। सो मीन्स एक्स ए एक्स बी जरूरी नहीं 2 ही है, 3 हो 4 हो, आप जितने भी हो इसमें ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज द मोल फ्रैक्शन। You can note down the formulas. So next method of concentration of solution is molarity. Molarity is represented by capital M and the formula of molarity is number of moles
of solute per liter of solution, per liter of solution. So this is the formula for molarity. ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको आपने प्रैक्टिकल्स के लिए भी यूज करना है. जब हमने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करने प्रैक्टिकल्स में, उसमें भी ये फॉर्मूला यूज होना है. दैट इज मोलारिटी, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. तो नंबर ऑफ मोल्स का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज गिवन मास स्मॉल m अपॉन मोलर मास पर लीटर ऑफ सोल्यूशन मीन्स वॉल्यूम इन लीटर. सो इसके यूनिट्स के आगे मोल्स per liter. So this is the unit of molarity. And second is, अब वॉल्यूम जरूरी नहीं है कि लीटर्स में दिया हो, कई बार मिलीलीटर्स में दिया होता है. देन फॉर्मूला विल बी m ओवर कैपिटल M इंटू वॉल्यूम. अगर मिलीलीटर्स में है तो यू हैव टू डिवाइडेड बाय 1000. सो वॉल्यूम लीटर को मिलीलीटर में करने के लिए हमने उसको डिवाइड कर दिया बाय 1000. तो इसमें आएगा मोल पर मिलीलीटर. यूनिट विल डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम. वॉल्यूम अगर लीटर्स में है तो मोल पर लीटर, अगर मिलीलीटर्स में है पर मिलीलीटर. पर मिलीलीटर को हमने 1000 से डिवाइड करना है. सो दिस इज द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन. कई बार दिया होता है, सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं इसके बाद. 0.1 मोल ऑफ NaOH. इसका क्या मतलब है? 0.1 मोल्स, 0.1 मोल, 1 मोल ऑफ NaOH हमें पता है उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा. कितना मॉलिक्यूलर मास है इसका? 23 प्लस 16 प्लस 1. सो दैट इज इक्वल टू 40. 1 मोल इतने के इक्वल है तो 0.1 मोल कितने के इक्वल होगा? 40 को अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 ग्राम. सो 4 ग्राम पर लीटर है आपका. 1 लीटर में, 1 लीटर सोल्यूशन में 4 ग्राम आपका NaOH है. इसका मतलब ये होगा. सो दिस इज द मोलारिटी. नाउ सेकेंड, आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोलालिटी. दोनों में फर्क स्पेलिंग्स का भी है और सिंबल का भी है. मोलारिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया था. नाउ सेवेंथ मेथड इज मोलालिटी, दैट इज स्मॉल m. इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है, सोल्यूशन नहीं लेना है. ये गलती कभी नहीं करनी कि यहाँ पे सोल्यूशन का मास लेना है. Here we will take the mass of solvent in kg. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मोल पर kg. तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला m अपॉन कैपिटल M इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्वेंट आपको सपोज W1 या W2, दैट डिपेंड्स कि आपने कौन सा सिंबल लिया. W ले लिया, ये kg में होगा. अगर आप इसको ग्राम्स में करना चाहते हो तो m बाय कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय W डिवाइडेड बाय 1000. तो यहाँ पे जो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट होगा दैट विल बी इन ग्राम्स. सो दिस इज द मोलारिटी. अब मोलारिटी और मोलालिटी दोनों में एक क्वेश्चन आता होता है, विच इज प्रेफर्ड, मोलारिटी और मोलालिटी, एंड व्हाई. अब देखो इन दोनों में से हम प्रेफर करते हैं मोलालिटी को. किसी भी कंसंट्रेशन अगर निकालनी है तो हम इसको प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू मोलारिटी. वाई? अब देखो जो मोलालिटी है इसमें हम ले रहे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट. और आपको पता है जब टेम्परेचर चेंज होता है मास कभी भी चेंज नहीं होता, बट टेम्परेचर चेंज के साथ वॉल्यूम चेंज हो जाता है. सो मतलब अगर वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज होने से हमारी मोलारिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी विद चेंज इन टेम्परेचर. बट मास तो चेंज नहीं हो रहा, मास नहीं चेंज होगा तो हमारी मोलालिटी जो होगी दैट विल रिमेन सेम, वो सेम रहेगी. सो हमारा प्रेफरेंस होनी चाहिए कि हम मोलालिटी को यूज करें एज कंपेयर टू मोलारिटी, क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होता है
ड्यू टू टेम्परेचर कंडीशंस मोलैरिटी में चेंज आ जाएगा, पर मोलैरिटी जो होगी वो हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि मोलैरिटी में हम मास की बात कर रहे हैं और मास कभी भी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, बट वॉल्यूम विल चेंज। अब देखो, जब हम लोग बात करते हैं गर्मियों की, गर्मियों में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होने के साथ हमारे टायर जो है वो जल्दी फटने स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज उसके अंदर जो गैस है प्रेशर जनरेट करती है, जिसके कारण वॉल्यूम बढ़ जाता है। सो वॉल्यूम चेंज होता है विद टेम्परेचर, मास चेंज नहीं होता। सो प्रेफर हमें किसको करना है, मोलैरिटी एज कंपेयर टू मोलैरिटी। नाउ लास्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द कंसंट्रेशन इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का सिंबल है कैपिटल N। इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, अब जो मोलैरिटी थी हमने लिया था नंबर ऑफ मोल्स, जिसका फॉर्मूला क्या था, गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। अब जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है, इसका फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। बाकी देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में मोलैरिटी में भी हमने लिया था और नॉर्मेलिटी में भी सेम ही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही लेंगे, बट फर्क कहाँ आया, वहां पे हमने लिए थे नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे हम लेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास, गिवन मास तो आपको दिया होगा 10 ग्राम 20 ग्राम जितना भी है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला मोलर मास डिवाइड बाय N। N इज अ फैक्टर जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कि एसिडिटी या बेसिसिटी कितनी है, एसिडिटी या बेसिसिटी। हमेशा याद रखो, जो एसिड्स होते हैं वो शो करते हैं बेसिसिटी और जो बेसिस होते हैं वो शो करते हैं एसिडिटी। फॉर एग्जांपल हम H2SO4 की बात करते हैं कि कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2। NaOH की बात करते हैं, ये कितने OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा, 1, तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, 1। तो बेसिस की हमने एसिडिटी देखनी है एंड एसिड्स की हमने बेसिसिटी। तो जितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस होंगे एसिड्स में या बेसिस में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका N फैक्टर। एंड N हम वैलेंसी भी बोल सकते हैं उसकी। सो दिस इज द इक्विवेलेंट मास, जिसको हम बोलेंगे मोलर मास डिवाइड बाय N। तो इस तरह से अब पहले इक्विवेलेंट मास निकालेंगे और उस इक्विवेलेंट मास को यहाँ पे पुट करके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पुट करके हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। तो फॉर्म इसके यूनिट्स क्या आ गए, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। सो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ लास्ट इज, अगर हमारे पास सपोज एक सोल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है जिसकी मोलैरिटी है M1, उसको हमने कन्वर्ट करना है किसी और सोल्यूशन में जिसकी मोलैरिटी M2 है, तो हमने चेक करना है कि M1 की कितने वॉल्यूम हम डालें कि जिससे M2 जो है सपोज 100 ml बन जाए। सो इसके लिए हमें फॉर्मूला क्या बनाना पड़ेगा, मोलैरिटी इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन, दैट इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2। सिमिलरली हम इसको नॉर्मेलिटी के साथ भी कर सकते हैं, दैट इज N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अगर हमारे पास एक सोल्यूशन दिया हुआ है जिसकी मोलैरिटी पता है, दूसरे की भी पता है, बट हमें पता नहीं है कि कितने वॉल्यूम हम इसके यूज करें इसमें इतने मिलीलीटर्स बनाने के लिए, तो हम ये मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। सो नाउ एक और था मेथड N3। सपोज हमने एक सोल्यूशन लिया, उसको दूसरे सोल्यूशन में मिक्स कर दिया। एक सोल्यूशन था जिसकी N1V1 थी रिक्वायरमेंट्स, दूसरे की N2V2 थी। हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया,
बट ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, तो जो हमारा फाइनल सोल्यूशन आएगा उसकी नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगी, N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2. So this will be the normality of the final solution which is formed by mixing these two solutions. Similarly, अगर molarity की बात करें तो M3 क्या होगी, M1 V1 plus M2 V2 upon V1 plus V2. So these are the all methods of finding the concentration of different solutions. Next, we will start with the formula of solubility and various methods to find the solubility of various solutions. That we will discuss in the next lecture. Please till then do subscribe our channel, like our videos and share with your friends, and do send your queries in the comment box. Till then, thank you so much. Bye bye.